کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں تقریباً 1 درجن ریاستوں کے جن راجوں اور نوابوں نے وفاقی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا تو 77 سال بعد ان نوابوں کے خاندان کہاں ہیں؟ 100 روپے کے نوٹ سے اپنے سگار سلگانے والے امیر ترین نوابوں کی اولاد میں اس وقت کون کون سیاست میں ہے اور کون سے نوابزادوں کی اولادیں آج کل غریبی کی زندگی بسر کر رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں شامل وہ کون سی ریاستیں ہیں جن کے نوابزادے آج پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو دوستو، پاکستان میں شامل پرنسلی سٹیٹ اور ان ریاستوں کے شاہی گھرانے کے خانوادے ہمارا آج کا ٹاپک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں فائقہ حسین۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاکستان بننے سے قبل یہاں کئی نوابی ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ ہر ریاست اپنی الگ کرنسی، ڈاک، دواخانے، مکتب، پولیس اور فوج رکھتی تھی۔ تقسیم کے بعد ہی سے خود مختار ریاستوں کے نواب پاکستان یا پھر بھارت کے ساتھ الحاق کرنے لگے۔ موجودہ پاکستان کی باؤنڈریز میں آنے والی ریاستوں کے نواب صاحبان نے جلد یا بدیر مرج ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایسی ہی ریاستوں کے فہرست میں خیرپور، سوات، بہاولپور، ہنزا، نگر، چترال، امب، دیر، کلات، مکران، خاران اور لسبیلا سمیت کئی چھوٹی سٹیٹس شامل تھی۔ یہاں میں ایک ایک کر کے ہر ریاست کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ ایک دور تھا کہ جب بہاولپور سٹیٹ کا شمار ہندوستان کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا تھا۔ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ دوستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد 7 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ نواب صاحب نے کراچی میں واقع اپنے الشمس محل اور قمر محل قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو دیے ہوئے تھے۔ یہی نواب صاحب تھے جنہوں نے پاکستان بن جانے کے فوری بعد پاکستانی کرنسی کی گارنٹی دی، حالانکہ اس وقت کوئی بھی ملک گارنٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کے علاوہ نظام حکومت چلانے کے لیے تمام سرکاری ملازمین کو پہلی تنخواہ بھی نواب آف بہاولپور کے خزانے سے ادا کی گئی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب صادق محمد خان عباسی کو محسن پاکستان کا خطاب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اگر کہیں پاکستان موجود تھا تو وہ ریاست بہاولپور میں تھا۔ بہاولپور سٹیٹ کا نواب خاندان بیش بہا دولت اور خزانوں کا مالک تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شاہ ایران اپنے پہلے دورے پر پاکستان تشریف لائے تو ہماری حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے کہ جو کسی غیر ملکی مہمان کے شایان شان ہوتے، تو پھر نواب صاحب نے خصوصی طور پر اپنے شاہی برتن ریل گاڑی کے ذریعے دارالحکومت کراچی بھجوائے اور شاہ ایران کی تواضع کی گئی۔ صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادوں میں نواب ایس ایم عباسی گورنر سندھ، نواب محمد عباس خان عباسی گورنر پنجاب اور پرنس سید الرشید عباسی وفاقی وزیر رہے۔ نواب آف بہاولپور کے پوتے نواب فلاح الدین عباسی مرحوم کی عمران خان کے ساتھ خوب دوستی تھی۔ نواب فلاح الدین عباسی بھی HECN تھے اور عمران خان نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فلاح الدین عباسی کے بھائی صلاح الدین عباسی 5 بار MNA بن چکے ہیں۔ حالیہ جنرل الیکشن میں صلاح الدین عباسی کے بیٹے پرنس بہاول عباس عباسی نے احمد پور شرقیہ سے الیکشن لڑا لیکن وہ شکست کھا گئے۔ بہاولپور کی طرح خیرپور بھی ایک آزاد خود مختار ریاست تھی۔ خیرپور ریاست کے تالپور حکمرانوں کے وارث میر مہدی رضا تالپور کے مطابق ایک زمانے میں ان کی ریاست جنوب میں سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز، شمال میں پنجاب کے کوٹ مٹھن، مشرق میں بھارتی ریاست راجستھان اور مغرب میں بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ پرنس میر مہدی رضا تالپور اپنے اباء و اجداد کے بنائے ہوئے فیض محل خیرپور میں رہتے ہیں۔
मुगल तर्ज तहमीर पर बनाया जाने वाला ये महल एक जमाने में तालपुर हुक्मरानों का शाही दरबार हुआ करता था। खैरपुर रियासत के दिफा के लिए फौज भी थी, मगर पार्टीशन के बाद इस रियासत को 1955 में पाकिस्तान में शामिल किया गया और इस तरह खैरपुर रियासत का वजूद खत्म हो गया। आज ये सूबा सिंध का एक शहर है। अली मुराद खान तालपुर खैरपुर रियासत के आखिरी हुक्मरान थे। मीर महंदी उन्हीं के साहबजादे हैं, जो कि आजकल हुकूमत से नाला नजर आते हैं। खैरपुर के फैज महल से एक रोमानवी दास्ता भी जुड़ी हुई है। तालपुरों के हुक्मरान खानदान ही के चश्मो चराग मीर अली नवाज नाज और लाहौर शहर की रकासा बाली के किस्से कहानियां आज भी किताबों में मिलते हैं। मीर अली नवाज ने बाली को पाने के लिए कई जतन किए। ऐसा बताया जाता है कि मीर अली नवाज तालपुर ने अपने खजाने की तिजोरियां बाली के घर वालों पर लुटा दी, तब जाके बाली के घर वाले उस शादी पर राजी हुए। बाली के भाइयों के लिए ये मशहूर था कि मीर अली नवाज ने इनको इतनी दौलत दी थी कि वो अक्सर महफिलों में अपने सिगार को करेंसी नोट जलाकर सुलगाते थे। खैर, मीर अली नवाज ने अपनी खानदानी रवायत को पसे पुश डालते हुए बाली से शादी कर ही ली। उन्होंने अपनी बीवी की मोहब्बत में खैरपुर में दिलशाद मंजिल बनवाई, जो आज भी बाली बंगले के नाम से मौजूद है। फिर एक रोज बाली अपने शोहर से नाराज होकर लाहौर चली आई और वापस ना लौटी, और फिर चंद साल बाद मीर अली नवाज इंतकाल कर गए। आजादी के बाद हिफाके पाकिस्तान से गैर मशरूत इल्हाक करने वाली पहली रियासत चित्राल थी। चित्राल स्टेट के बादशाह को मकामी जुबान में मितार, जबकि उर्दू में मेहतर कहा जाता है। आज की बात करें तो इस वक्त मेहतर फतेह अल मुल्क अली नासिर कतूर शाही घराने के सरबराह हैं। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा भी शाही खानदान के चश्मो चराग थे। उनके वालिद सैयद फतेह अली मिर्जा नजफी मुर्शिदाबाद की रॉयल फैमिली के खानवादे थे। मुर्शिदाबाद के सिकंदर मिर्जा बंगाल के आखिरी नवाब मंसूर अली मिर्जा के पोते थे। उनके खानदान ने 200 साल तक बंगाल और असम पर हुकूमत किए रखी। आपने सुना होगा कि 1747 की जंगे पिलासी में अंग्रेजों से मिलकर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था। यही मीर जाफर सिकंदर मिर्जा के परदादा थे। सदर सिकंदर मिर्जा के बेटे हुमायूं मिर्जा ने फ्रॉम पिलासी टू पाकिस्तान के नाम से किताब भी तहरीर की, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के हवाले से तमाम तर तफसीलात कलमबंद की। साबिक सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के हवाले से कहा जाता है कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बड़ी तंगदस्ती में गुजरे और वो लंदन के एक होटल में मामूली तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर हुए। अब मैं आपको एक ऐसे ताकतवर नवाब के बारे में बताती हूँ जो वैसे तो एक जिले से भी कम रकबे की जागीर के नवाब थे, लेकिन जब वो सियासत में आए तो चित्राल से लेकर कराची तक यानी आज के पूरे पाकिस्तान के हाकिम बन बैठे। मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन गवर्नर रहने वाले मलिक अमीर मोहम्मद खान काला बाग स्टेट के नवाब थे। फौजी सदर अयूब खान की दिली ख्वाहिश थी कि नवाब साहब उनकी काबीना में वजीर बने, लेकिन नवाब ऑफ काला बाग ने ये कहते हुए वजारत लेने से इनकार कर दिया कि मैं इन 2-2 टके के अराकीन असम्बली के सवालों का जवाब देता फिरूं। बादजा उन्हें गवर्नर बना दिया गया। बताया जाता है कि नवंबर 1967 को नवाब ऑफ काला बाग अपने बेटे असद के हाथों मारे गए थे। कहा जाता है कि बेटे ने अपने बाप पर फायर खोल दिया और एकदम 5 गोलियां चलाई, जिससे नवाब ऑफ कालाबाग मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नवाब साहब का कत्ल उनकी बेगम साहिबा ने किया था और अपनी वालदा को बचाने के लिए नवाब असद ने इल्जाम अपने सर ले लिया। मौलाना तारिक जमील ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैंने अरब के बड़े बड़े बादशाहों से मुलाकातें की हैं, लेकिन मैंने आज तक नवाब अकबर बुगटी जैसा रोबो दबदबा और वजाहत और किसी में नहीं देखी। नवाब अकबर बुगटी वैसे तो किसी नवाबी रियासत के राजा महाराजा नहीं थे, लेकिन वो अपने 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल ट्राइब के सरदार जरूर थे। अकबर बुगटी खानदान का शुमार आज भी पाकिस्तान के ताकतवर खानदानों में होता है। सूबा सिंध के सांगर जिला में आबाद पीर पगारा खानदान भी किसी तौर पर रॉयल फैमिली से कम नहीं। सैयद सिबगतुल्ला शाह दोम पीर पगारा शशम अपने हजारों खुर मुजाहिदीन के साथ मिलकर बरसगीर पर काबिज अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। इस जुर्म की पादाश में 35 साला पीर साहब पगारा को साल 1943 में सेंट्रल जेल हैदराबाद में फांसी पर लटका दिया गया।
पीर पगारा एक सूफी मुस्लिम फैमिली है। हुर जंगजुओं के रूहानी लीडर की फांसी के बाद सैयद मर्दान शाह पीर पगारा बने और आज उनके बेटे 8वें पीर पगारा हैं, जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह भी हैं। पीर पगारा की फैमिली के कई अफराद सियासत करते आए हैं। ये खानदान सिंध में इंतहाई ताकतवर समझा जाता है। पीर पगारा का प्रोटोकॉल और जाहो जलाल किसी तौर पर भी बादशाह से कम नहीं है। आज पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ स्टेट को हमारे मुल्क का हिस्सा दिखाया जाता है। जब पाकिस्तान को आजादी मिली तो उस वक्त जूनागढ़ स्टेट के नवाब महाबत खान जी ने अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से कर दिया। इंडिया ने कई दीगर रियासतों की तरह जूनागढ़ रियासत को भी अपनी तवील में ले लिया। नवाब ऑफ जूनागढ़ अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आकर रहने लगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक और शाही गिराने के बारे में बताती हूँ कि जिनकी जागीरें, मालात और खजाने इंडिया ही में रह गए। आजादी से कबल हिंदुस्तानी राजधानी दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर पटौदी रियासत हुआ करती थी। एक लोधी पठान इब्राहिम अली खान उस वक्त पटौदी रियासत के नवाब थे। आज के वक्त में भारतीय रियासत हरियाणा में 10 एकड़ पर फैला हुआ 150 से ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल महल पटौदी रियासत की यादगार है। हुआ कुछ यूं कि आजादी के बाद नवाब इब्राहिम अली खान पटौदी के बेटे मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी पाकिस्तान आकर रहने लगे। इंडियन फिल्म एक्टर सैफ अली खान जनरल शेर अली खान पटौदी के बड़े भैया इफ्तिखार अली खान पटौदी के पोते हैं। दोस्तों, इस तरह से भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान की औलाद भी पाकिस्तान आकर रहने लगी। आखिरी नवाब ऑफ भोपाल की बेटी शहजादी साजिदा सुल्तान आजादी के बाद कराची शिफ्ट हो गई। उनके बेटे शहरयार खान मशहूर डिप्लोमेट थे, जो पीसीबी के चेयरमैन के अलावा सेक्रेटरी खारजा भी रहे। आज के टाइम पर चंद एक नवाबजादों का रस्मी तौर पर प्रोटोकॉल तो है, लेकिन वो पहले वाला ठाट बाट नजर नहीं आता। जबकि कई नवाब खानदान तो अब किस्से कहानियों तक महदूद हो चुके हैं। यहाँ इस शेर पर मैं वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगी। नवाबों के नवाब थे, हकीर हो गए, अरे एक यार की खातिर फकीर हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नवाब अकबर बुगटी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नवाब ऑफ कालाबाग की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे, और पीर साहब पगारा को जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज।